یہ کہانی کبھی سنی کہ جب حضرت عمر خلیفہ عمر تھے، مسلمانوں نے پیغمبروں کے شہر جروسلم کو فتح کرنے کے لیے اس شہر کو ہر طرف سے گھیر لیا تھا، لیکن جروسلم کے لیڈر نے کہا تھا کہ میں یہ شہر صرف ایک ہی شرط پر مسلمانوں کے حوالے کروں گا، اور وہ شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلیفہ عمر بن خطاب خود مدینہ سے چل کر میرے پاس آئے۔ حضرت عمر نے اس کی یہ بات مان لی، اور پھر حضرت عمر صرف اپنے ایک غلام اور ایک اونٹ کے ساتھ مدینہ سے جروسلم کی طرف روانہ ہوئے۔ راستہ بہت لمبا تھا، اس لیے اونٹ پر صرف حضرت عمر نہیں بیٹھے، بلکہ حضرت عمر اور ان کے غلام باری باری کر کے اس اونٹ کی سواری کرتے رہے، اور اس طرح دونوں باری باری اونٹ پر بیٹھ کر جروسلم پہنچے۔ جیسے ہی دونوں جروسلم کے گیٹ کے اندر جا رہے تھے، اس وقت اونٹ پر بیٹھنے کی باری حضرت عمر کی نہیں بلکہ ان کے غلام کی تھی۔ اسی لیے حضرت عمر اونٹ کی رسی پکڑ کر جروسلم انٹر ہوئے، اور ان کا غلام اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر جروسلم کے لوگ حیران رہے، اور انہوں نے حضرت عمر کے سامنے یہ شہر سرنڈر کر دی۔ یہ کہانی ہم سب نے بچپن سے بار بار سنی، لیکن اس کہانی میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ کہانی اسلام کی کسی بھی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بنے، جس کے بعد انہوں نے ایک ہی ٹائم پر اس زمانے کی سب سے بڑی سپر پاورز رومن اور پرشین امپائر پر حملہ کر دیا۔ مسلمان فل سپیڈ رومن اور پرشین امپائر کے یہ سارے علاقے فتح کر کے آگے بڑھ رہے تھے، لیکن آخر جیسے ہی مسلمان رومن امپائر کے سینٹر تک پہنچے، اچانک مدینہ میں خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طبیعت خراب ہونے لگی، اور اس کے کچھ ہی دن بعد خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن جانے سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ان کے بعد مسلمانوں کا نیا خلیفہ کون ہوگا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر نے خلیفہ بنتے ہی مسلمانوں کی اس خلافت کو اور بھی تیزی سے آگے بڑھانا شروع کیا، اور آخر حضرت عمر کی ہی خلافت میں مسلمانوں پر ان کی زندگی کا سب سے مشکل ٹائم آیا، جنگ یرموک، اسلام کی سب سے بڑی جنگ۔ صرف 30,000 مسلمانوں کی جنگ 1.5 لاکھ رومن فوج سے تھی، لیکن خالد بن ولید کے زبردست اسٹریٹجی سے مسلمان یہ جنگ جیت گئے۔ جیسے ہی مسلمان یہ جنگ جیتے، مسلمانوں کے جنرل نے سیدھا ایک لیٹر مدینہ میں خلیفہ عمر کی طرف بھیجا۔ اس لیٹر میں لکھا ہوا تھا، یا امیر المؤمنین، مسلمان یرموک کی جنگ جیت چکے ہیں اور رومی فوج تباہ ہو چکی ہے۔ اب آپ کا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کیا ہم اسی طرح آگے بڑھیں، اور یا ہم آگے بڑھنے کے بجائے سب سے پہلے پیغمبروں کے شہر جروسلم کی طرف جائیں اور اس شہر کو فتح کریں؟ اور آف کورس حضرت عمر نے اس لیٹر کا صرف ایک ہی جواب دیا، جروسلم۔ جس کے بعد مسلمانوں کی فوج ہر طرف سے جروسلم کی طرف بڑھنے لگی، اور اس طرح مسلمانوں نے آخر پیغمبروں کے شہر جروسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ لیکن مسلمان نہیں چاہتے تھے کہ اس شہر کو بھی باقی شہروں کی طرح لڑ کر فتح کیا جائے، اور اس ہولی شہر میں لوگوں کا خون بہا۔ اسی لیے مسلمانوں کے جنرل نے جروسلم کے لیڈر کی طرف ایک لیٹر بھیجا، اور اسے بتایا کہ بغیر کوئی خون بہائے یہ شہر ہمارے سامنے سرنڈر کر دو۔ جروسلم کے لیڈر کو بھی مسلمانوں کی یہ بات اچھی لگی، اور اس نے کہا ٹھیک ہے، میں سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، میں یہ شہر صرف تب ہی سرنڈر کروں گا جب مسلمانوں کی اس پوری امپائر کا خلیفہ عمر خود میرے پاس آئے گا۔ یہ ایک بہت ہی یونیک ڈیمانڈ تھی، لیکن مسلمان بھی اور کیا ہی کر سکتے تھے۔ انہوں نے جروسلم کے لیڈر کی یہ ڈیمانڈ سیدھا مدینہ میں خلیفہ کی طرف بھیجی، اور یہ لیٹر پڑھتے ہی حضرت عمر نے سارے بڑے صحابہ کی ایک میٹنگ بلائی، اور ان سے پوچھا کہ ہمیں اس شرط کے بارے میں کیا کرنا چاہیے، جس پر آلموسٹ سارے صحابہ نے کہا کہ یا امیر المومنین آپ نہ جائیں، آپ کے جانے کی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کے جانے کے بغیر بھی مسلمان آسانی سے یہ شہر فتح کر سکتے ہیں۔ لیکن صرف ایک صحابی ایسے تھے جنہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ کو جانا چاہیے، اور وہ صحابی تھے مسلمانوں کے فیوچر خلیفہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ۔
हजरत उमर को हजरत अली की ये राय बहुत पसंद आई और हजरत उमर ने हजरत अली को मदीना में अपना नायब डेप्यूटी खलीफा बनाकर खुद मदीना से जेरूसलम की तरफ रवाना हुआ। यहां तक तो ये सब कुछ बिल्कुल सही है और बिल्कुल 100% ऐसे ही हुआ था और इस्लामिक हिस्ट्री की सारी किताबों में ये वाकया ऑलमोस्ट ऐसे ही लिखा हुआ है। लेकिन यहां से आगे हमें बचपन से एक कहानी सुनाई जाती है जो इस्लाम की हिस्ट्री की किसी भी किताब में नहीं लिखी है कि हजरत उमर मदीना से सिर्फ एक गुलाम और एक ऊंट के साथ मदीना से फलस्तीन की तरफ रवाना हुआ। इस सफर में सिर्फ हजरत उमर ऊंट पर नहीं बैठे बल्कि हजरत उमर और उनके गुलाम बारी बारी इस ऊंट का सफर करते रहे और इसी तरह बारी बारी हजरत उमर और उनका गुलाम जेरूसलम की तरफ बढ़ते रहे जो 1 महीने का सफर था। आखिर हजरत उमर और उनका गुलाम जेरूसलम के बिल्कुल करीब पहुंचे और जैसे ही दोनों जेरूसलम की गेट तक पहुंचने वाले थे इस टाइम ऊंट पर बैठने की बारी हजरत उमर की नहीं बल्कि उनके गुलाम की थी। इसीलिए जेरूसलम एंटर होने के वक्त ऊंट पर हजरत उमर नहीं बल्कि उनके गुलाम बैठे हुए थे, जिसे देखकर जेरूसलम के लोग हैरान रह गए कि खलीफा पैदल चल रहा है और उनका गुलाम ऊंट पर बैठा हुआ है और इसीलिए उन्होंने जेरूसलम सरेंडर कर दिया। ऑफ कोर्स ये कहानी आपने बचपन से किसी ना किसी से जरूर सुनी होगी और वाकई में ये एक बहुत मशहूर कहानी भी है। इसी तरह ये दोनों जेरूसलम में दाखिल हुए। लेकिन इस कहानी में एक बहुत बड़ा मसला है, ये कहानी इस्लाम की किसी भी किताब में नहीं लिखी हुई, ना किसी हदीस की किताब में और ना किसी हिस्ट्री की किताब में कहीं पर भी ये कहानी नहीं लिखी हुई। सिर्फ तबरी, इब्ने असीर, इब्ने कसीर, इब्ने खल्दून की किताबों में नहीं बल्कि इस्लाम की हिस्ट्री की किसी छोटी किताब में भी ये कहानी नहीं लिखी हुई। मतलब इस्लाम की 1400 साल की तारीख में ये कहानी 1200 साल तक किसी ने नहीं सुनी थी और पिछले सिर्फ 100 या 200 साल में ये कहानी हर तरफ फैल चुकी है। तो ये कितनी अजीब बात है कि जो वाकया पिछले 1200 साल से ना किसी मुसलमान ने सुना था और ना लिखा था और अचानक आज वो वाकया सबको पता है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, आपको मेरी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं बल्कि ये किताब देखें, तारीख उम्मते मुस्लिमा। और ये कोई आम किताब नहीं है, ये किताब पाकिस्तान के एक बहुत बड़े स्कॉलर ने लिखी है और इस किताब का मुकदमा, इंट्रोडक्शन पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मुफ्ती मौलाना तकी उस्मानी ने लिखा है। बदुल भाई का बाप भी कायम किया, हदीस भी लिखी। इस बुक में इस्लाम की पूरी हिस्ट्री डिटेल से डिस्कस की गई है और यह किताब जब हजरत उमर के जेरूसलम वाले वाक़े तक पहुंचती है, इधर ये स्कॉलर लिखते हैं, हजरत उमर के जेरूसलम के सफर के बारे में लोग अक्सर कहते हैं कि सफर में हजरत उमर के साथ एक गुलाम था और दोनों बारी बारी ऊंट पर बैठा करते थे। जेरूसलम पहुंचते वक्त हजरत उमर ऊंट की रस्सी पकड़कर चल रहे थे और उनका गुलाम ऊंट पर बैठा हुआ था क्योंकि उस वक्त ऊंट पर बैठने की बारी गुलाम की थी। यहां से आगे ये स्कॉलर खुद लिखते हैं कि बहुत ढूंढने के बाद भी मुझे इस्लाम की तारीख की किसी भी किताब में यह वाकया ज़ईफ से ज़ईफ रिवायत में भी नहीं मिला। पता नहीं कहां से लोग ये कहानी लोगों को सुनाते रहते हैं। इसके बाद ये स्कॉलर मुझे और आपसे, हम सबसे कहते हैं कि मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आइंदा ये कहानी लोगों को सुनाना बंद कर दें, क्योंकि अगर किसी ने भी आगे से इस कहानी का सबूत मांग लिया तो फिर आपको इस कहानी का सबूत देना मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि ये कहानी इस्लाम की किसी भी किताब में नहीं मिलेगी आपको। अगेन, ये मैं नहीं कह रहा, इस किताब का मुकदमा मुफ्ती तकी उस्मानी ने लिखा है और ये तो सिर्फ पाकिस्तान के स्कॉलर ने लिखा है, इवन अरब दुनिया के भी एक बहुत बड़े स्कॉलर अली सलाबी ने भी अपनी किताब उमर बिन खत्ताब में इस वाकये का कोई जिक्र नहीं किया। और इवन उमर सीरीज जो हजरत उमर की जिंदगी पर बनाए जाने वाली सबसे ऑथेंटिक सीरीज है, उसमें भी ये वाकया नहीं दिखाया गया। तो अब क्वेश्चन ये कि फिर आखिर असल वाकया है क्या? हजरत उमर के जेरूसलम का सफर जो इस्लाम की हर किताब में लिखा हुआ है वो ये है कि जब मदीना में हजरत उमर के पास ये लेटर पहुंचा कि जेरूसलम का लीडर हजरत उमर को अपने पास जेरूसलम बुला रहा है, उसके बाद हजरत उमर ने हजरत अली को मदीना का लीडर बनाया और खुद फलस्तीन की तरफ रवाना हुए। हजरत उमर मदीना से सीधा जेरूसलम नहीं बल्कि सबसे पहले मुसलमानों के हेडक्वार्टर जाबिया पहुंचे और फिर जाबिया में कुछ दिन गुजारने के बाद हजरत उमर अपने कुछ साथियों के साथ जेरूसलम की तरफ रवाना हुए। रास्ते में एक नहर की वजह से हजरत उमर के कपड़े गंदे भी हो चुके थे
जैसे ही हजरत उमर जेरूसलम पहुंचे, जेरूसलम को मुसलमानों की फौज ने चारों तरफ से घेरा हुआ था। मुसलमानों ने हजरत उमर के सादा और फटे हुए कपड़े देखकर हजरत उमर से कहा कि आप इतने बड़े खलीफा हैं, आप ये ऊंट और कपड़े बदलकर कोई अच्छे महंगे कपड़े और घोड़े के साथ जेरूसलम के अंदर जाए ताकि लोग आपको देखकर इंप्रेस हो जाए। लेकिन हजरत उमर ने कहा नहीं, आज हमें दुनिया में इतनी इज्जत हमारे अच्छे कपड़ों की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की वजह से मिली। और इस तरह हजरत उमर अपने इन्हीं कपड़ों और उसी ऊंट के साथ जेरूसलम की तरफ बढ़ने लगे। अब यहां पर एक पॉइंट नोट करना बहुत लाजमी है। जेरूसलम को मुसलमानों ने हर तरफ से घेर रखा था। मुसलमानों की फौज और जेरूसलम के दरमियान इतना रास्ता था ही नहीं जिसके लिए ऊंट की बार बार बारियां बदली जाएं। इस्लाम की हिस्ट्री की हर किताब में लिखा है कि हजरत उमर अपने ही ऊंट पर इसी तरह जेरूसलम एंटर हुए और इस तरह बगैर कोई खून बहाए हजरत उमर ने फलस्तीन को फतह कर लिया। इन शॉर्ट, इन सारी बातों को देखकर यही लगता है कि ये कहानी बाद में किसी ने गलती से बनाई होगी, जहां से ये कहानी आहिस्ता आहिस्ता हर जगह फैल गई और आज तक हम सब इस कहानी को बिल्कुल सही समझते हैं। इस वीडियो का असल मकसद ये है कि आजकल एआई और इंटरनेट के इस दौर में जब हर तरफ हमारे आसपास कहानियां फैली हुई हैं, तो हमें चाहिए कि हम हर कहानी को बहुत सोच समझकर और रिसर्च कर माने। और कुरान की भी एक आयत है कि जब भी आप तक कोई खबर पहुंचे तो उस बात को मानने से पहले पूरी रिसर्च कर लिया करो।